Yes, good morning, dear Maxwell. Paule ji, namaskar. Good morning. Namaskar, how are you? Good, sir. Is it okay? Everything okay? Am I visible? Absolutely clear voice. You're also maybe little light. More light will be better. One more light if you can put on. Okay. Let me see if I go little forward. Is it improving? Actually, the light is coming from behind you. The light should come from the front of you. आपके पीछे से लाइट आ रहा, आपके सामने लाइट होना चाहिए. This is little better. हाँ, this is better. Okay, अंदर में अच्छा दिख रहा हूँ लगता है. नहीं, अभी थोड़ा अच्छा. हाँ, वो तो दिखेगा ना, आपका कलर भी ऐसी है. Okay. I cannot share my distance. इसको कम कैसे करूँगा? Hello, Maxwell. Hello, Maxi. Yes. Paule ji, बताओ, बोलो. Did you attend yesterday funeral to Mr. Richard yesterday? No, actually nobody was allowed to go. Oh, I see. But few people are allowed, no? 50, around 20, 25 people are allowed, I think, in the No, cremation. this was a different case. I see. Okay. I will discuss with you on the phone. Okay, not okay. Maxwell sir, good morning. Good morning, Vinay ji. Hello sir. Dattu sir, good morning. Good morning, bhai. Good morning, everyone. Good morning, Good everyone. morning, Max. Good morning, Paule ji. Good morning, Good everyone. morning, Vinay. Good Good morning. morning, sir. To Good Ashish morning. sir, good morning. Good morning, bhai. Good morning. Thank you. Okay.
विनय वीकली शेड्यूल वाला डाल दे स्क्रीन। हाँ वो भी ठीक है. Tomorrow is Mr. Ajit Singh. Yes. सर मैसेज सर 2 मिनट. हाँ जी, हाँ जी. मैसेज सर स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करूं? यस सर, यस सर. On behalf of the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India, I welcome all of you on today's teaching on the E-Pathshala. आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज के टीचिंग में E-Pathshala कोचिंग प्रोग्राम conducted by the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India. आज का जो टॉपिक है is basic general endurance on bike and technique and teaching on basic techniques. आज का जो टीचर है, आज का जो रिसोर्स पर्सन है, he is one of the most experienced people in cycling. In fact, he is a national commissioner, he is an international commissioner. He is certified by the National Institute of Sport. He has a certification not only from the National Institute of Sport, but he was one of the toppers in the class. He was coach for the Indian team in 1985 that represented a tournament in Egypt. He was coach for the Indian team at the Asia Cup in 2017. He was a national cyclist from the year 1977 to 1984. He represented the services and brought many laurels to his department. Presently, he is the head coach at the NCEO Guwahati. Now I call Pauleji, this is Mr. Subhash Pauleji, one of the senior most cyclists, one of the senior most experienced people. Now I call Pauleji the champion of champion coaches. The reason why I call him the champion of champion coaches, because he is the coach of our champion coaches
like R.K. Sharma, V.N. Singh, Rogadeji, and he was also the coach of one of the best technicians in our country, Bhim Singh Daya. So he has a lot of experience and he has vast knowledge on the subject. He has a lot of experience in every area of cycling. So please make use of it. Attend the class carefully, take notes, listen to what he has to say. I am sure you will benefit a lot from this class. This is a very exciting and very interesting class today. So I welcome all of you once again. Attend it very carefully. And I invite Sri Subhash Paule ji to take over and give his expertise. Thanks, dear Maxwell. Thanks, dear Maxwell, for a great introduction. Welcome, I sir. don't think I deserve that introduction. Thank you very much. And good morning, dear all. Good morning, dear sirs. Good morning, dear parents. And good morning, dear participants. Today, we are joined this cycling webinar due to the combined initiative taken by the Sports Authority of India, Sports Authority of India, Cycling Federation of India, and the Fit India movement. Am I audible, Vinay? Yes, sir. Okay, good. Thank you. Thank you. I sincerely thank the office bearers of the Cycling Federation of India, Sports Authority of India, and the Khelo India, and the Director General, Sports Authority of India, Mr. Sandeep Pradhan, Chairman, Mr. Onkar Singh, Cycling Federation of India, General Secretary, Mr. Maninder Pal Singh, Cycling Federation of India. I thank them all to giving me an opportunity to present my presentation today. Mr. Maxwell has introduced you about me, so I need not to introduce myself. But I've seen Mr. Maxwell. I've seen Mr. Maxwell from his childhood, way back in 1978, 79 onwards. I've seen him falling down on the cycling track. So I advise you all that maybe you are a champion. You should always take precaution when you do cycling on the road or a training or casual or in the competition. You must always be punctual and sincere and attentive. Thank you. Just a minute, I'll share my screen for today's presentation. Yes, can you see my presentation? Can you see my front page? Vinay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can do full screen. Okay, just wait. Is it okay? Yes, sir. Now, okay. Yeah, dear all, thank you. Once again, today's presentation, today's sports webinar, cycling sports webinar is on the general endurance training on bike and teaching basic techniques. So today's endurance training, what is endurance training? Endurance training is also called as a base training. ये आपका फाउंडेशन है. एंड्योरेंस ट्रेनिंग कोई भी साइकिलिंग ट्रेनिंग में ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करता है. वी आर गोइंग इन ब्रीफ, आगे और भी कुछ जानकारी लेंगे. द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर योर फिटनेस. ये प्लेटफॉर्म आपका फिटनेस प्लेटफॉर्म ग्रेजुअली बढ़ाता है. यू शुड सी द ग्रेजुअली, नॉट इंस्टेंटेनियसली. Endurance training is the foundation upon which everything else rests. Endurance training ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर आपकी बाकी सभी ट्रेनिंग जो आने वाली ट्रेनिंग्स है वो इसके आधार पर होगी. ये फाउंडेशन है. आपका फाउंडेशन जितना अच्छा होगा उससे आपकी इमारत या बिल्डिंग या टावर वो ज्यादा स्टेबिलिटी रहता है, स्टेबिलिटी आता है उसमें. So when you build endurance, eventually you can get more out of high intensity riding and heavier training load. आपका जैसा एंड्योरेंस बढ़ेगा, आप जैसे एंड्योरेंस अच्छा एंड्योरेंस होगा तो आप जो आगे आने वाली हाई इंटेंसिटी राइडिंग्स है या हेवियर ट्रेनिंग लोड होगा उसमें आपको ये एंड्योरेंस मदद करेगा. ये और भी कुछ है. व्हेन यू राइड फॉर 2 or more hours एट ए स्टेडी पेस. एंड्योरेंस राइड एक स्टेडी पेस में होती है. अ टाइपिकल बेस्ट एंड्योरेंस राइड ये 2 घंटे के करीब, 2 घंटे के ऊपर होनी चाहिए अच्छे राइडर्स के लिए. Your body responds with changes that allow you to use more oxygen and go
more fat as you fuel. आपको बॉडी का फ्यूल, आपको बॉडी में फ्यूल आपको फैट बर्न से मिलता है. ये एंड्योरेंस राइड में आपकी फैट बर्न होती है, उसमें आपका एनर्जी पैदा होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो आपको ये एंड्योरेंस राइड करने में काम आती है. Your body responds with changes that allow you to use more oxygen and more fat as fuel. For starters, these rides build more capillaries. जो राइडर्स जो अभी शुरू कर रहे हैं साइकिलिंग, 12, 14, 16 इयर्स ऑफ ओल्ड एज के जो साइकिलिस्ट हम जो शुरू करते हैं साइकिलिंग, उनके कैपिलरीज बढ़ती है. व्हाट इज दैट कैपिलरीज? कैपिलरीज ये टाइनी ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर मसल्स. कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी वेसल्स होती है जो आपके मसल्स को ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करती है. द capillaries are the tiny blood vessels that deliver oxygen rich blood to your muscles. Your mitochondria, the part of your cells that produce energy, also multiply and enlarge. आपकी कैपिलरीज बढ़ रही है, दूसरे सेल्स में आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. पार्ट ऑफ सेल इज ए माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं. द पार्ट्स ऑफ योर सेल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, ये पावर हाउस है, आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग हाउस है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर्स भी उनके बढ़ते हैं और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, एनलार्ज भी होते हैं. एंड यू टर्न आउट मोर एंजाइम्स दैट हेल्प टर्न स्टोर फ्यूल इनटू एनर्जी. और एंजाइम्स भी आप ज्यादा पैदा करते हो, और वो भी आपको जो आपकी स्टोर्ड फ्यूल है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है. और ये ऑल रिजल्ट्स into you being a faster and a longer. You can ride faster and longer. ये benefit है ये endurance ride. Am I audible? Am I clear to everybody? Yes, sir. Good, good. Can you understand? All are understanding this? ये basic था about endurance. And finally, and maybe more important, endurance rides क्या होती है? Endurance rides social rides होती है. बेस बिल्डिंग राइड्स तो होती है, मगर ये सोशल राइड्स भी होती है. जब आप ग्रुप में ट्रेनिंग करने जाते हो, एंड्योरेंस राइड जनरली हम लोग रोड ट्रेनिंग करते हैं, प्रीफरेबली 100% ऑन द रोड. व्हेन सम डिफिकल्टीज, ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, वी गो ऑन अदर लाइक ट्रेनर्स और ऑन अदर थिंग्स. बट व्हेन यू डू एंड्योरेंस, वी डू जनरली ऑन द रोड, और 2-4 घंटे का राइड होता है. सो इट इज मोर सोशल भी होता है, फन भी होता है इसमें. तो आपको टेंशन नहीं रहता है ये राइड में, आपको टूटने का, छूटने का, बंच के पीछे रहने का आपको टेंशन नहीं रहता है. सो यू कैन जस्ट एंजॉय बीइंग ऑन योर बाइक, हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, रिचार्जिंग योर बैटरीज विदाउट वरिंग अबाउट गोइंग हार्ड और बीइंग ड्रॉप्ड. आपको छूटने की ये इसमें टेंशन नहीं है, तो मैं छूटूंगा, मेरा क्या होगा आगे, तो ये टेंशन नहीं रहता एंड्योरेंस राइडिंग में जब रोड पे आप ट्रेनिंग करते हो. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ये अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा. ये एग्जाम्पल है, ये हमारे बच्चे जो मेरे साथ गुवाहाटी में हैं, जो शुरू में आए थे, तो इन लोग का हम लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग का एक ये वीडियो मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. मेरा आवाज आपको सुन रहा है हम लोग, आप लोग मेरा आवाज सुन रहे होंगे? जी सर, जी सर. देखो, ये एंड्योरेंस राइड करते टाइम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे आपने देखा आपके बगल से ट्रक गया, ऐसे और कुछ व्हीकल्स जाते आते रहते, मगर आपने पीछे देखा नहीं है, आप तो आगे अपना साइकिल चलाते रहते. सो आपका अटेंशन भी ये एंड्योरेंस राइड के टाइम में आपका अटेंशन भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका सेंस, ट्रैफिक सेंस इम्प्रूव होता है. देखो और एक गाड़ी गई, मगर आप अपना राइडिंग आप सीधे चल रहे हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है. वी विल रिपीट दिस अगेन. तो कोई डर नहीं है आपको, आप अपने लेन में चला रहे हो. आप इंश्योर करना है जो भी पीछे से जो गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, टेम्पो आ रहा है, कार आ रही है, उसको सफिशिएंट जगह अगर आप दोगे तो यू विल नेवर मीट विद एन एक्सीडेंट और सम इंसिडेंसेस. दूसरा आपने देखा है, यह जो आगे जो राइडर चल रही है वो एरोडायनेमिक पोजीशन में चल रही है.
व्हाट इज एरोडायनेमिक पोजीशन? तो ये आपकी पोजीशन जो आपका विंड, आपका मेन साइकिलिंग में आपका विंड रेजिस्टेंस है, विंड जो है आपको बहुत दुश्मन है आपका, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए आपके पास एक ही इलाज है, वो है आपका एरोडायनेमिक पोजीशन। तो ये राइड, एंड्योरेंस राइड, बेस्ट राइड, सोशल राइड, ये आपको अपना एरोडायनेमिक पोजीशन भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। और आपको आगे जब आप टाइम ट्रायल जाओगे, आप कोई टाइम ट्रायल इवेंट चलाओगे, तो एरोडायनेमिक पोजीशन वहाँ बहुत मैटर करती है। वही तो आपका टाइम कम कर सकता है, एरोडायनेमिक पोजीशन ही आपका टाइम कम कर सकता है। अगर वो एरोडायनेमिक पोजीशन अच्छा नहीं है और ये राइड्स में हम लोग उसका उपयोग या उस ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो अपने पास दूसरा और कोई मौका नहीं है हमारी एरोडायनेमिक पोजीशन इंप्रूवमेंट करने के। तो यू शुड, जब भी आपकी ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग या जब भी आपको मौका मिलता है, यू शुड ऑलवेज टेक द एरोडायनेमिक पोजीशन। दूसरा आपने देखा हुआ है कि ये जो साइकिलिस्ट आगे चल रही थी वो पीछे आ गई। क्यों पीछे आई? नाउ शी हैज लीड द ग्रुप, वो थकान हो गई, वो ग्रुप का स्पीड से चल रही है, वो थकान हो गई उसको, या थकान नहीं भी होगी तो आगे वापस बंच का स्पीड चेंज नहीं करना है, ये आपका मेन मोटो है। अगर 30 का स्पीड है, 35 का स्पीड है, तो वो कंटिन्यू रखना है। तो वो कंटिन्यू रखने के लिए आपको रिलैक्सेशन, रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लीड करके पीछे आते हो, वी विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ। दिस इज अनदर वीडियो, सेम एंड्योरेंस राइड वीडियो। तो इसमें भी आप देखोगे, देखो ये लड़की बहुत आगे जो चल रही है, वो बहुत एरोडायनेमिक पोजीशन ले रही है। पीछे जो आ रहे हैं वो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स करते हैं, सो दैट व्हेन दे गो इन द लीड वो वापस फ्रेश होते हैं और अपना बंच का स्पीड दे इंश्योर दैट द स्पीड डजंट गो डाउन। और ये देख रहा है आपको चेंज ओवर भी सिखाता है, आपको पेसिंग में कैसा बैठना है का है वो भी सिखाता है, पेसिंग कैसे अच्छा होगा ये भी सिखाता है। ये राइड आपको विंड को कैसे फेस करना है वो भी सिखाता है। अभी शायद यहाँ जो राइडिंग का पोजीशन एक्लॉन, ये जो फॉर्मेशन चल रहा है, ये लोग राइट में चेंज कर रहे हैं, मे बी द विंड इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो जो पीछे वाले जो राइडर्स चल रहे हैं उनको विंड का अफेक्ट उनके ऊपर कम होगा। ओनली द लीडर विल फेस द विंड। दूसरा, आपको चेंज ओवर करते टाइम 100 मीटर 200 मीटर एक आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 100 के 200 मीटर के बीच में आप अपना लीड चेंज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपका बंच का स्पीड कम नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ये बंच राइडिंग पे और एंड्योरेंस राइडिंग। we'll stop this video and we'll go to the next slide. So riders, कोई कुछ मीट्स या ऐसे कुछ किसी राइडर्स को बेस्ट राइड पसंद नहीं होता है, एंड्योरेंस राइड पसंद नहीं होता है, 2-4 घंटा पसंद नहीं करते, तो कोई राइडर्स के दिमाग में रहता है जैसे फ्रेजेस है, राइडर्स एन हरी टू गेट राइट टू द हाई इंटेंसिटी वर्क। राइडर्स को बहुत जल्दी होती है, मैं हाई इंटेंसिटी वर्क करूंगा, बट दे यूजुअली बर्न आउट इन 1 or 2 months, मगर वो 1-2 महीने में टुस हो जाते हैं। मगर इसलिए आपको बेस्ट राइडिंग जरूरी है। अदर वापस और एक फ्रेज है, ऑल राइडर्स हु गो स्ट्रेट इनटू द स्पीड वर्क। जो राइडर्स ज्यादा डायरेक्ट स्पीड वर्क करने जाते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए वो फास्ट हो सकते हैं, बट दे वोंट हैव एरोबिक एंड्योरेंस, मगर उनके पास एरोबिक एंड्योरेंस नहीं है, तो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक वो साइकिल नहीं चला सकेंगे। So their fitness just lasts for a few weeks before they slow down. अच्छा, अभी एंड्योरेंस राइड की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एंड्योरेंस राइड में। सो यू शुड डू एंड्योरेंस राइड एट zone 2 इंटेंसिटी। साइकिलिंग में हमारे अलग अलग जोन रहते हैं, आपको मैक्सवेल साहब ने 2 दिन पहले के लेक्चर में प्रेजेंटेशन में बताया व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन। जोन 1 to जोन 7 तक जोन रहते हैं। तो जोन 1 ये रिकवरी राइड रहती है जनरली, तो जोन 2 है वो एंड्योरेंस राइड कहती है। उसमें जोन 2 में जब आप ट्रेनिंग करोगे तो ये एंड्योरेंस राइड कहलाती है, विच इज क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड्योरेंस राइड का, विच इज 65 to 75% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट।
आपके 65 to 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में आपको चलाना है। सपोज आपका हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट, जैसे वीरेंद्र सिंह साहब ने 2 दिन पहले आपको बताया था व्हाट इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट। सपोज एक किसी लड़के का मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है, तो उसका परसेंटेज आप निकालोगे तो 65 to 75% मतलब 130 to 150%, 130 to 150 बीट्स पर मिनट आपको ये राइड में आपका हार्ट रेट आना चाहिए। यू शुड एंश्योर दैट इट डजंट क्रॉस योर 150 लिमिट। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। The key is to keep your intensity steady, avoid coasting and hard efforts. एंड्योरेंस राइड करते टाइम आपको अपना इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता है। इंटेंसिटी ऐसे भी हो सकता है आपका स्पीड, एक पैरामीटर है इंटेंसिटी का, ये एंड्योरेंस राइड में स्पीड है। कुछ पर्टिकुलर गियर रखा हुआ है, 100 आरपीएम है, उसका स्पीड अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है या 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। So you should ensure that speed is maintained, so it is steady ride. Avoid coasting. What is coasting? मतलब फ्री राइड कर रहा है, मतलब हम लोग डिस्टेंस आज 100 किलोमीटर किया है मगर आपने पैडलिंग ही बीच में छोड़ दिया है, so you have done free running. So instead of doing 100 kilometers, you effectively might have done 60, 70, 80 kilometers, not 100 kilometers. So आपको coasting करना अवॉइड करना है। You can do coasting for a few seconds just to relax when you are at the back of the bunch, and avoid hard efforts also. कुछ आपका स्टेडी पेस चल रहा है 20-25 किलोमीटर जो आपने डिसाइड किया वो स्पीड से आप चल रहे हैं, मगर सडनली आप 30-40 किलोमीटर जाना, that is to be avoided. A few weeks of this big builds a big aerobic engine. आप जब ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग कई हफ्ते करोगे तो आपका एरोबिक इंजन की क्षमता बढ़ेगी। इफ द वेदर इज बैड, अगर वेदर खराब है, आप किसी कारणवश रोड ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो यू कैन डू द सेम ट्रेनिंग ऑन द ट्रेनर ऑल्सो। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू राइड, इट कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम 90 मिनट्स। आपका राइड का डिस्टेंस अभी मैं पीछे बोला था 2 घंटे के करीब होना चाहिए, एंड मल्टीपल आवर्स होना चाहिए, और अबाउट 75% ऑफ योर वीकली ट्रेनिंग टाइम शुड बी एट जोन 2 डूइंग बेस बिल्डिंग। जब आप बेस बिल्डिंग पीरियड में होते, अलग अलग पीरियड्स रहते हैं, प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिशन फेज, ट्रांजिशन पीरियड। तो जब बेस बिल्डिंग में है तो आपका मोस्ट ऑफ द राइड शुड बी इन द जोन 2। बिगिनर्स के लिए तो डेफिनेटली आई विल एडवाइज टू डू मोर ऑफ द जोन 2 ट्रेनिंग। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वापस ये और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर इज अ स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग जोन। इन लास्ट स्लाइड वी डिस्कस इंटेंसिटी एट मैक्सिमम हार्ट रेट। हम लोग ने बोला 65 to 75% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट आपको राइड एंड्योरेंस राइड करना है। हियर हम लोग FTP, योर फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर या फंक्शनल थ्रेशोल्ड हार्ट रेट, FTHR, ये बहुत काफी, ये एक मापदंड है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप FTP या FTHR से ट्रेनिंग करोगे तो इट इज बेस्ट इन ऑल, बेस्ट कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्मेट्स। इफ यू हैव पावर मीटर, FTP के लिए आपको पावर मीटर होना जरूरी है। पावर मीटर के साथ आपको कैडेंस मीटर होना जरूरी है। पावर मीटर कंप्यूटर में कंप्यूटर एक्सेसरी रहेगा, तो उसमें आपको पावर मीटर मतलब पेडल बेस हो सकता है या क्रैंक बेस पावर मीटर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव, मगर ये काफी अच्छा ट्रेनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैं तो कहूँगा, मैं लास्ट टाइम भी आपको इक्विपमेंट्स के टाइम में मैं कहा था कि ये पावर मीटर आपको लेना चाहिए। पावर मीटर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फिक्स डिस्क फीस 1-1.5 लाख की, तो आप ये पावर मीटर कॉम्बिनेशन 70-80,000 1 लाख में आ सकता है। बट दिस विल बी लाइफ लॉन्ग,
या आपका ट्रेनिंग का फिटनेस लेवल सुधर सकता है। अगर पावर मीटर नहीं है तो हम लोग हार्ट रेट के ऊपर भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट हार्ट रेट आपको एग्जैक्ट रीडिंग देता नहीं है। हार्ट रेट आपको थोड़ा, हार्ट रेट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड योर एफर्ट्स, तो इट इज बेटर टू गो फॉर दी एफटीपी, फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर। अगर आपके पास पावर मीटर है, लास्ट टाइम हम लोग ने 65 to 75% मैक्सिमम हार्ट रेट बोल रहे थे, पावर मीटर है तो आपको ये एंड्योरेंस साइड 56 to 75% करनी है। 56 to 75% ऑफ फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर आपको करना है। अगर आपके पास पावर मीटर नहीं है, आपके पास हार्ट रेट मीटर है, तो आप 69 to 83% ऑफ थ्रेशोल्ड हार्ट रेट करना है। मैक्सिमम हार्ट रेट और थ्रेशोल्ड हार्ट रेट में थोड़ा फर्क है। तो जब ये थ्रेशोल्ड हार्ट रेट लोगे, FTHR लोगे, तो 69 to 83% ऑफ थ्रेशोल्ड हार्ट रेट आपको ट्रेनिंग करनी है। फॉर दिस यू नीड टू फाइंड आउट योर FTP, FTHR। और ये ट्रेनिंग, ये कोई भी अगर हम जोन में ट्रेनिंग करते हैं तो हमको FTP, फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर या फंक्शनल थ्रेशोल्ड हार्ट रेट निकालना जरूरी है। हम लोग जब जिम में जाते हैं तो आपको मालूम है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये 1 RM टेस्ट, जैसे जिम में हम लोग जाते हैं तो हमारी 1 RM टेस्ट होती है। तो 1 RM रेंज क्या होती है? आप मैक्सिमम लोड क्या उठा रहे हो, आप डेड लिफ्ट मैक्सिमम कितना करोगे, आज आप बेंच प्रेस मैक्सिमम कितना करोगे, आप स्क्वाट मैक्सिमम कितना कर सकते हो, उसको बोलते हैं 1 RM टेस्ट। और वो 1 RM टेस्ट के हिसाब से हम आगे का फ्यूचर आपको लोडिंग देते हैं कि बाबा आज 80% कर लो, आज 50% कर लो, आज 60% कर लो ट्रेनिंग। तो उसी के हिसाब से हमारे साइकिलिंग में भी ये FTP, FTHR काम कर रहा है। हम अगर कोई नया राइडर मेरे पास आता है तो मैं इसका FTP टेस्ट 2-4 हफ्ते के बाद ले लूंगा, या कोई साइक्लिस्ट जो है लास्ट ईयर उसने ट्रेनिंग किया, अभी उसने बीच में ट्रांजिशन पीरियड लिया 15 दिन का, 1-2-3 हफ्ते का, अभी वापस वो ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, तो उसको भी 2-3 हफ्ता साइकिलिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं उसका FTP टेस्ट ले लूंगा। ये वापस एक जोन 2 ट्रेनिंग का वीडियो मेरे पास है। ये सब आपने मैक्सवेल साहब के प्रेजेंटेशन में, इंट्रोडक्शन टू जोन ट्रेनिंग के इंट्रोडक्शन में आपने देखा हुआ है। ये फिर भी मैं कुछ अंदाजा दे रहा हूँ, ये वापस आपको थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट ऑफ योर, दिस इज द कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, वो है साइक्लो कंप्यूटर का स्क्रीन है। इसमें आप लेफ्ट में देख रहे हैं, इसका कैडेंस चल रहा है। इसमें आपके पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल, उस हिसाब से आप, जैसे आपके पास कैडेंस मीटर है तो आपको कैडेंस दिखाएगा, आपके पास हार्ट रेट बेड लगाया होगा तो हार्ट रेट आपको दिखाएगा। राइट साइड में हार्ट रेट दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में आपको कैडेंस दिखा रहा है। ये शायद पावर है, आपके अगर पास पावर मीटर लगा है साइकिल में तो ये पावर भी दिखाता है, लैप टाइम कितना हो गया, ये सब फैसिलिटीज, ये सब पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर से दिखा रहे। तो हमारे जोन 2 ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया आपको, ये मैक्सिमम हार्ट रेट के हिसाब से अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो इसका अगर 200 मैक्सिमम हार्ट रेट है तो 65 to 75% ये 130 to 150 के बीच में उसको ट्रेनिंग करना है। और इसका RPM जनरली बेस राइड में RPM 100 के करीब होना चाहिए। सो लेट अस सी व्हाट इज ही डूइंग। देखो इसका पोजीशन, ये अगर ये ट्रेनर के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, मगर ये एरोडायनामिक पोजीशन ले रहा है। सो यू शुड ऑलवेज टेक एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन इन द एरोडायनामिक पोजीशन। यही तो ट्रेनिंग है। आप स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग करते ना एरोडायनामिक पोजीशन इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो जब भी आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जब भी आपको पॉसिबल है, यू शुड डू ऑलवेज एरोडायनामिक पोजीशन, ट्रेनिंग इन एरोडायनामिक पोजीशन। यही तो आपका टाइम इंप्रूव करने के लिए आपको आगे मदद करेगा टाइम ट्रायल इवेंट्स में। तो अभी देखो इसका कैडेंस 109 चल रहा है। मे बी इसका कैडेंस थोड़ा ज्यादा है जो, क्योंकि ये ट्रेनर पे ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनर पे और रोड में ट्रेनिंग के टाइम में थोड़ा फर्क आ सकता है, कैडेंस में बहुत ज्यादा इजी जाएगा। और इसका हार्ट रेट देखो, ही इज इंश्योरिंग दैट हिज हार्ट रेट इज विद इन दैट जोन 130 to 150। ओके, सो दिस इज अ लर्निंग टू यू। आपके पास, आपको मेंटेन करना है आपका ट्रेनिंग जोन, और ये ट्रेनिंग जोन 2 का ट्रेनिंग जोन है। 130 to 150 के हार्ट रेट में चलना है।
आपका आरपीएम जनरली मैं स्पेसिफाई करता हूँ 100 आरपीएम के करीब होना चाहिए। कंटिन्यूस पैडलिंग है, कोई जैसे हम लोग ने कोई पैडलिंग रोकता नहीं है, कोस्टिंग करता नहीं है, हमेशा एक ही स्पीड में एक ही पेस में आपको चलना है। तो देखो अभी भी उसका हार्ट रेट 136 चल रहा है, so he is in the zone. Now we'll go to the sorry, आप 20 स्ट्रोक से भी, ये बोल रहा है 20 स्ट्रोक से भी वर्क ऑन योर पैडलिंग टू डेवलप ए कंसिस्टेंट फोर्स ऑल द वे अराउंड। आपका पैडलिंग कंटिन्यूस होना चाहिए, कंसिस्टेंट फोर्स होना चाहिए। Spend 2 or 3 rides a week aiming for a cadence of about 90 to 100 revolutions per minute. देखो यहाँ एक एंड्योरेंस राइड की और एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, आपको कैडेंस 90 to 100 रखना है। जो नए लड़के हैं 90 के करीब जा सकते हैं, लड़कियां थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको 100 आरपीएम करना, तो 90 to 95 वो कर सकते हैं, मगर ऑलवेज बॉयज के लिए आई प्रिफर गोइंग 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट और 100 कैडेंस पर मिनट। आपको 2 से 3 राइड एक वीक में करना है। यूज फोर्स। दूसरा, राइडिंग ए बाइक फॉर सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड पावर। आप जब 2-4 घंटे राइड करोगे तो आपको स्ट्रेंथ एंड पावर की जरूरत होती है। यू नीड ए पावर, स्ट्रेंथ एंड पावर व्हेन यू राइड फॉर 2 और मोर आवर्स। इसलिए for that reason, for 1 or 2 rides a week, plan 1 or 2 rides a week for a seated lower cadence hill climbing. Hill climbing में भी आपको हिल क्लाइंबिंग करना भी आपको ट्रेनिंग में, आपके ट्रेनिंग में हिल क्लाइंबिंग भी करने का 1-2 सेशन आपको रखना चाहिए। प्लान 1 or 2 rides a week for seated low cadence। अभी हम लोग ने यहाँ देखा 100 कैडेंस बोल रहे, मगर वहाँ 70-80 आरपीएम कैडेंस होना चाहिए हिल क्लाइंबिंग आप करोगे तो। और staying in the saddle on all climbs builds hip and knee strength and improves power। आप जब सीटेड करोगे, सैडल में बैठ के काम ट्रेनिंग करोगे तो आपका नी पावर, नी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है और हिप मसल्स भी इम्प्रूव होते हैं। उसके साथ साथ सप्लीमेंट विथ मूव्स दैट स्टिमुलेट पेडलिंग एक्शन लाइक स्क्वाट्स, लेग प्रेस। जब भी मौका मिलता है आपके सेशंस में, वीकली ट्रेनिंग सेशंस में आप 2-3 सेशंस जिम सेशंस भी रख सकते हो, जिसमें आप स्क्वाट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेग प्रेसेस कर सकते हो, स्टेप अप्स कर सकते हो, और भी काफी लो बॉडी एक्सरसाइज होती है, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिम ट्रेनिंग में। Improving endurance is also possible with shorter and harder rides। जैसे हम लोग, मैंने बोल रहा, मैं इंसिस्ट कर रहा था एंड्योरेंस राइड आपको 2-4 घंटा होना जरूरी है, एंड इट इज वेरी मच फैक्ट। जब नया राइडर है तो आपको एंड्योरेंस राइड 2-4 घंटे, 3-4 महीना तो ही करना चाहिए। जब आप सीजन होगे तो वी कैन थिंक ऑफ दिस राइड। व्हाट इज दिस राइड? We can ride at a sweet spot, हेलो। स्वीट स्पॉट जोन होता है, जैसे जोन 1, 2, 3 की जो पावर चल रही है या हार्ट रेट है, ये जोन स्वीट स्पॉट होता है। ये जोन 3 और जोन 4 के बीच वाला जो स्पॉट है उसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं। उसमें आप ट्रेनिंग करोगे फिर भी आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होता है। राइडिंग देयर विल आल्सो इंप्रूव योर एंड्योरेंस, बट उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट गेट यू, आपको देखो ये भी बोल रहा है गेट यूज्ड टू राइडिंग 3 hours व्हेन दैट इज इजी, एड इन इंटरवल्स। ये भी बोल रहे हैं आपको 3 घंटा साइकिलिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू दिस हार्ड ट्रेनिंग्स लाइक 2 sets of 20 minutes of sweet spot। आप 20 मिनट्स का, जैसे 3 घंटे का सेशन लिया तो आप 1 घंटे के बाद BR2 करने के बाद, जैसे जोन 2 में ट्रेनिंग करोगे 1 घंटा 20 मिनट्स, उसके बाद आप जोन ये स्वीट स्पॉट में करोगे ट्रेनिंग, उसके बाद वापस
20 मिनट्स आप रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद और एक सेट 20 मिनट्स का कर सकते हो इन स्विच स्पॉट, एंड टोटल ड्यूरेशन रेस्ट ऑफ द राइड जो भी टाइम मिलेगा आप जोन 2 में करोगे। तो लाइक दैट दिस स्विच स्पॉट ट्रेनिंग विल आल्सो इंप्रूव योर एंड्योरेंस। दूसरा है, अभी आपने टोटल 3 आवर्स का ट्रेनिंग किया, वंस यू कैन डू दैट maybe ride 4 hours and test yourself with 130-minute block। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होती है आपको टेस्ट करना है कि बाबा मेरी कैपेसिटी और बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और वेदर आई कैन डू इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 20 मिनट्स टू सेट आई कैन डू वेदर 30 मिनट्स का मैं सेट कर सकता हूँ क्या, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए आप 4 घंटा सेशन ले लो, 4 घंटे में 2 घंटे के बाद आप 30 मिनट का सेशन देख सकते हो, एक ही सेशन 30 मिनट्स का। अगर वो पॉसिबल है then we can think of going to the next session of 45 minute block at speed spot। दूसरा, अगर ये 4 घंटे के ट्रेनिंग में अगर 45 मिनट्स आप कर सकोगे बीच स्वीट स्पॉट का ट्रेनिंग, 2 घंटा जोन 2, 45 मिनट्स इन स्वीट स्पॉट, रिमेनिंग आवर्स इन जोन 2। इफ अगर ये आपसे नहीं हो सकता, इफ दैट इज टू हार्ड, then you have to go back to just doing 4 hours of endurance। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, अगर मेरा ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो आप 4 घंटा टोटल एंड्योरेंस तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप वो इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना है। एंड जब आप सोचते हो सब ठीक हो गया, देन कम बैक टू द इंटरवल्स व्हेन योर फिटनेस इम्प्रूव। दूसरा है, इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर ए माउंटेनियस रीजन, अगर आपकी रेस, अगर आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीड नॉट बी इन द फ्लैट रेस, फ्लैट रोड पे हो सकता है या माउंटेन रीजन में भी हो सकता है। कर्नाटक में जाओगे, केरला में जाओगे, बॉम्बे पुणे रेस होती है, महाराष्ट्र में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, कोई हिली एरिया में जाओगे, वहाँ कोई रेस कोई ऑर्गेनाइज किया है, रोड रेस ऑर्गेनाइज किया है, तो वो शायद क्लाइंस में हो सकती है। So you are going to need spend a significant amount of time on climbing। If you have no hills, आपको क्लाइंब ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए आपको क्लाइंबिंग ट्रेनिंग करनी है, हिल क्लाइंब करना है। अगर आपके पास हिल्स नहीं है, then you can do a training in a strong headwinds। If you have no hills, mountains where you live, आप जहाँ रहते हो वहाँ माउंटेन्स हिल्स नहीं है, then training in short headwinds, strong headwinds। अगर हेडविंड कोई कोई जगह हेडविंड्स बहुत चल रही है तो उसमें भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑन फ्लैट रोड्स, वो भी एक ट्रेनिंग का एक हिल क्लाइंबिंग के लिए एक सब्स्टिट्यूट है। दूसरा और है, इफ यू डोंट लाइव इन एरिया दैट हैज स्ट्रॉन्ग विंड्स, आपके पास हिल्स नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, दूसरा क्या पर्याय है आपको, दूसरे पास अदर ऑल्टरनेटिव इज वर्किंग ऑन एन इंडोर ट्रेनर विद इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस। आप highest gear डालो, highest gear on your road bike is also an option for increasing load। ये भी आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स है। माउंटेन्स नहीं है तो यू कैन गो ऑन हेडविंड्स नहीं है तो दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास ट्रेनर होगा, उसमें हाईएस्ट गियर डालो और उसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग की सुविधा आपके पास है, यू शुड कीप डूइंग द ट्रेनिंग। Yes, I have almost finished. Mr. Vinay? Yeah, can I add something here? We have some time. We will do. Can I add something? We'll go for one more slide. I have one video by GCN Network, Global Cycling Network. There is one Global Cycling Network YouTube channel, which is also giving a lot of information on the cycling. So we'll see this video. We have time, so we'll take this opportunity to see this video. This is on the endurance training. He gives some advices. He gives facts and fictions about the endurance training in the endurance level zone 2. Just wait. Can you see this video? सर इसके लिए आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, यूट्यूब में चलाना पड़ेगा।
In the meantime, can I add something to Mr. Paule's teaching? You can develop the base of aerobic fitness, देखिए which you can then build. जैसे मैंने बताया, ये एंड्योरेंस लेवल आपको कैसा इंप्रूव करने का है, वो एक सिखा रहा है। आपका बेस अच्छा होना चाहिए। You can develop. सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, आपको न्यू शेयर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू शेयर का ऑप्शन होगा, न्यू शेयर। विनय मेरा आवाज आ रहा? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा, आपका आवाज आ रहा। तो इस बीच में मैं कुछ ऐड करूं जो पॉले जी का टीचिंग, जब तक वो वीडियो सेट करे तो। नहीं नहीं, ये वीडियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? स्टॉप वीडियो बोल रहा है, ये तो वीडियो चालू है। हाँ, वीडियो चालू है, बट आपको न्यू स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। न्यू शेयर होगा, on which you can जहाँ पे develop आप स्क्रीन शेयर करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू शेयर का। later date. ओके ओके, ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे इसको। So I just wanted to add something to ओके ओके, Paule's teaching. ओके, गो गो गो। या आप लोग जैसा देखे थे कि पाउले जी ने आप लोग को एक वीडियो दिखाया था और उसमें राइडर जो है सामने से पीछे आ रहा था, जो चेंज करके पीछे आ रहा था। तो हम आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर दो फैक्टर्स होता है। एक्चुअली देयर आर टू टेक्निकल थिंग्स दैट इज हैपनिंग। इसमें एक एक्सटर्नल टेक्निकल चीज हो रहा, एक इंटरनल टेक्निकल चीज हो रहा। तो वी ऑलवेज डू चेंजिंग। अभी कई बार हम लोग करें, लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि एक्चुअली क्या हो रहा, ये क्यों आगे चलाना इतना मुश्किल क्यों है और किसी के पीछे चलाना इतना थोड़ा सा आसान है। आई डोंट थिंक इट एवर वेंट इनटू आवर माइंड कि टेक्निकली क्या हो रहा। तो I, for the benefit of all the viewers on this platform, I just want to give you a technical aspect of what happens. जब ये राइडर सामने जा रहा, the first rider, ये first rider actually he is moving into air particles. As he is moving into air particles, he is compressing these air particles, and these air particles are getting spaced and coming from the front of the rider to the back of the rider. ये एयर पार्टिकल्स जो कंप्रेस हो रहा राइडर से, जो जब आगे जा रहा, तो ये स्पेस मतलब साइड से आगे से पीछे आ रहा। तो जब ये आगे से पीछे आता, ये ध्यान में रखना कि राइडर के आगे जो एयर प्रेशर है और राइडर के पीछे जो एयर प्रेशर है, देयर इज अ डिफरेंस इन दीज एयर प्रेशर्स। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दीज एयर प्रेशर्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रैग फोर्स दैट इज क्रिएटेड बिहाइंड द राइडर। वो ड्रैग फोर्स जो है, it causes a kind of a suction to pull the next rider. ये externally ये हो रहा। तो that is why it is difficult for the first rider, because he is moving into air particles and compressing those air particles. It is making him more difficult. These air particles are getting spaced out and coming behind because of the air pressure difference from front to back. It's causing a drag. That is a drag force. So that is the external change that is happening in the rider. Internal change क्या हो रहा? When the rider is in the front, इसके पास क्या है, he is using much more intensity than the riders behind him. तो जब ये इसका जो intensity है, he is using his energy from his main source of energy will be coming from the anaerobic system because his intensity is high. So this energy system cannot keep fueling you for a very long time because the intensity is high. So when the rider comes from the first position into the rear position, now the intensity of the rider has become much less. So now what happens, because the intensity of the rider has become much less, now is major fueling system from the body is changed from the anaerobic system to the aerobic system. You see what's happening? आप देखिए क्या हो रहा है इधर। तो now what happens is, because the intensity is less, ये जो है is most prominent energy system working in his body becomes the aerobic energy system, which is fueling the rider at the back, using oxygen and fueling him. तो आप देखिए, it looks very simple. आप जब राइडर सामने से पीछे आ रहा, बहुत सिंपल दिखता, लेकिन टेक्निकली देखिए आप एक्सटर्नली क्या हो रहा, एक्सटर्नली ये हो रहा और इंटरनली भी कुछ चेंजेस हो रहा। तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इजी व्हेन द राइडर comes behind, it is very easy for him to ride. वो जरा, he feels relaxed because he's in a lower intensity than the rider in the front. And the rider in the front, technically, externally, this is what is happening. Because he is moving into air particles, and मैं जैसा बताया था आपको, he is causing a drag. And any object that is moving forward, the same effect happens. इसलिए आप देखो लॉरी, जब लॉरी आगे जाता,
इट इज द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट दैट इज हैपनिंग. तो लॉरी के पीछे जो है आपको बहुत इजी रहता चलाने, बिकॉज द वॉल्यूम of the lorry is much more, so it causes a greater drag effect, a greater drag force. That is why it is much easier to come behind the lorry. So my aapko just, this is just elaborating a little more on Paulaji's teaching. His teaching was excellent, so I just wanted to share this ki technically andar kya hota aur bahar kya hota rider mein when you make these changes from in a teamwork. That is why it is important, and that is why when you're riding, it is always important to keep changing to you get a relaxation behind you, your energy systems keep changing. Our team time trial road mein dekhiye, isliye the speed of the road team time trial will be much faster than the individual road time trial of an individual rider, because of this effect, because they are sharing the intensities. The riders are sharing the intensities, they are sharing the external force also, the air particles. So that is why they become much faster than the individual rider. I just wanted to share this for the benefit of everyone. Thank you, Paulaji. Okay, thank you, dear Maxwell, for adding. Okay, almost I have finished my presentation. We can open the floor for the question and answer. ओके, जिसको भी कोई क्वेश्चन है, आंसर को क्वेश्चन पूछना है, वो अपना हैंड रेज कर सकता है. Those who want to ask the question, kindly raise hand. Okay, Michael sir. Hello. हाँ जी विनय जी बोलिए. Yeah. One Mr. Vivek Shah. Hello. Hello. Yes sir. Yes, Vivek, go ahead. आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है. हाँ. नमस्ते सर, नमस्ते पॉल सर, नमस्ते मैक्सवेल सर. नमस्ते. नमस्ते जी. सर मुझको सिर्फ एक नॉलेज ये लेना था कि जैसे हम तो हिल एरिया में रहते हैं और बेसिकली हमारे बच्चे, मेरे बच्चे एमटीबी ही राइड करता है, बट मेरे पास में रोड बाइक भी है. अगर वो रोड पे हिल एरिया पे अगर रोड बाइक से प्रैक्टिस करेगा तो उसको एमटीबी पे उसकी पावर पे कितना फर्क पड़ेगा एक, और उसको हिल एरिया पे कितनी जो है, जो बेसिकली गाड़ी चलने वाली रोड है, क्योंकि एमटीबी की रोड्स पे तो रोड बाइक चलेगी नहीं, लेकिन जो गाड़ी की रोड है उस पे कितनी देर उसको राइड करना चाहिए, ये मुझे नॉलेज चाहिए आपसे. आपको तो हमेशा, आपके पास तो हिल्स है, आप हिल्स का एडवांटेज लेना चाहिए. अलग अलग हिल सेशंस होते हैं. आप कंटिन्यूअस 20 मिनट 30 मिनट सेशन भी आप कर सकते हो. दूसरा भी हिल क्लाइंबिंग के सेशन होते हैं. जैसे आपने 5 मिनट एफर्ट किया, फुल एफर्ट किया, 5 मिनट रेस्ट लिया, या एक आप हिल किया, 5 मिनट आपने हिल किया, कम डाउन, टेक फ्यू मिनट्स ऑफ रेस्ट, टोटल 5 मिनट्स का रिकवरी ले लो, वापस 5 मिनट का सेशन कर लो. ऐसे आपकी जैसी कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे फ्रॉम 5 to 6 to 8 आप रिपीटेशंस कर सकते हो. आप वेदर यू डू इट ऑन द रोड और माउंटेन बाइक, आपको बेनिफिट मिल सकता है. Paulaji, can I add something? Yes, please. तो आपने बताया था, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर माउंटेन बाइक के जगह आप रोड बाइक चलाएंगे, यही क्वेश्चन था ना आपका? प्रैक्टिस में सर. प्रैक्टिस में. तो मेरा एडवाइस है कि these two bikes are totally different. जैसा मैं आपको कल बताया था, जमीन आसमान का फर्क है ये बाइक्स में. और आप अगर ये बाइक चलाएंगे, रोड बाइक चलाएंगे, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो कंट्रोल माउंटेन बाइक पे आएगा वो नहीं आएगा. तो इफ इज माउंटेन बाइक राइडर अगर है और आप जैसे हिलिया एरिया है, तो मेरा एडवाइस है कि आप ऑफ रोड ट्रेनिंग करिए अपना माउंटेन बाइक पे, क्योंकि उसके अंदर इट इज डिजाइंड फॉर अ डिफरेंट पर्पस. आपका जो माउंटेन बाइक है, इट इज ये इसके लिए डिजाइन, मतलब रोड पे भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसका डिजाइन और कुछ है. उसका जो टायर, जैसा मैं कल डिटेल में बताया था, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप माउंटेन बाइक राइडर को रोड बाइक में ट्रेनिंग कराए तो उसको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है. एक तो उसका एनर्जी सिस्टम तो डेवलप होता, जैसा उसका एरोबिक सिस्टम वो तो डेवलप होता, वो रनिंग से भी होता, कहीं कुछ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी से होता, लेकिन उसका जो बाइक स्किल्स है, उसका जो
टर्न, उसका जो बाइक स्किल्स है, उसका जो जंपिंग स्किल्स है, उसका जो ग्रेवल्स और जो रॉक्स पे चलाते, वो स्किल्स जो है उसके अंदर अगर है भी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा अगर ये रोड पे ट्रेनिंग करेगा। तो द ट्रेनिंग इटसेल्फ एंड द इवेंट इटसेल्फ इज टोटल डिफरेंट। आप माउंटेन बाइकिंग का इवेंट ही अलग है। तो आप जैसा पॉले जी ने बताया था, वो आपका जो एनर्जी सिस्टम डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। आपका जो जैसा ये बता पॉले जी बता रहे थे कि आपका जो लेवल 1 लेवल 2 जो बेसिक इंड्योरेंस है वो तो डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसका बाइक स्किल्स जो है इसमें नहीं, इतना नहीं होगा जितना माउंटेन बाइक पे होगा, और जितना ऑफ रोड में चलाएगा इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर ए एमटीबी राइडर। सर लेकिन क्या थोड़ा बहुत रोड बाइक करना चाहिए एमटीबी वाले को? थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। देखो, अगर कभी आपको ऑप्शन नहीं है तो एक आध बार, दो बार आप चला सकते हैं। आपका जो इंड्योरेंस सिस्टम बढ़ जाएगा, वो तो कभी कभी रनिंग भी कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अगर आपका कंपटीशन एक साल बाद है तो थोड़ा बहुत मतलब स्विमिंग विमिंग दूसरी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। ये सभी से आपका जो इंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप वंस इन अ वेयर मतलब आप जरूर चला सकते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है पूरा, आपका ट्रेनिंग जो पूरा एमटीबी बाइक पे रहना और ऑफ रोड पे रहना। क्योंकि मैं जैसा कल बताया था, ये जो कोर्स जो होता है एमटीबी का, उसका 85% जो है ऑफ रोड होता है और उसका 15% जो है ऑन रोड यस होता है। तो आपका आपका ट्रेनिंग भी यही होना चाहिए। आपका 15% जो है आप ऑन रोड कर सकते हैं, आप 85% ऑफ रोड रहना चाहिए। थैंक यू। अच्छा सर, सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि सर जो ट्रेनर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए एमटीबी राइडर की, वो ट्रेनर पे उसको एमटीबी बाइक लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए या रोड बाइक लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए? उसको किस चीज पे ज्यादा किस बेनिफिट चीज होगा ट्रेनर पे? किस चीज का ट्रेनर मतलब? आप आजकल अलग अलग टाइप के ट्रेनर्स आ रहे हैं। आपका मतलब बैक व्हील निकाल के वो वाला ट्रेनर नहीं नहीं, बता रहे बैक हैं। व्हील वाला नहीं सर, व्हील लगा हुआ ट्रेनर। नहीं, उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जैसा ये टायर बताया था, इसका जो मोटा टायर है। लेकिन और एक टाइप का ट्रेनर आता है जो आप बैक व्हील निकाल के उसके ऊपर फिक्स करके आप जी कर सकते हैं। जी उसके ऊपर जो है आपको उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ट्रेनर जी में आप, क्योंकि लेकिन एक चीज तो फर्क पड़ता है, आपका सिटिंग पोजीशन। क्योंकि ओके। आपका सिटिंग पोजीशन एमटीबी बाइक पे अलग है, आपका सिटिंग पोजीशन रोड बाइक पे अलग है। तो यस। इवन ये सिटिंग पोजीशन में क्या है, जब जैसा आप बैठ रहे हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता। तो आप जो मतलब कंपटीशन में जो जैसा आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसी पोजीशन में अगर आप ट्रेनिंग करें तो आपको ज्यादा फायदा है। तो मेरे अच्छा सर, ख्याल से हाँ हाँ जी। जी 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 सर, बोलिए बोलिए सर, पहले फिर पूछता हाँ, तो नहीं, मैं बोला कि अगर आप बैक व्हील निकालने वाला ट्रेनर रहता इट इज बेटर। हूँ। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा और था कि सर जो क्लीट पेडल्स हैं, हाँ जी, क्लीट पेडल सर रोड बाइक का और एमटीबी का क्या एक ही पेडल्स एक ही पैटर्न होता है या दोनों के अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसका जी उसका पेडल आपको, ये क्लीट उसमें नहीं लगता, वो क्लीट इसमें नहीं लगता। उसका पेडल अलग है, उसका क्लीट अलग है। एमटीबी का क्लीट और पेडल अलग है, ओके और रोड बाइक का क्लीट और उसका शू ही अलग है। क्लीट भी ओके नहीं है, उसका शू भी अलग है। तो इट इज ए टोटल डिफरेंट। जैसा मैं बताया, उसमें बहुत फर्क है। रोड जी बाइक, रोड राइडिंग में और एमटीबी में बहुत फर्क है। जो उसका जूते भी डिफरेंट है, जूते, क्लीट्स, पेडल सब अलग है। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैक्सवेल सर, थैंक यू पावले सर, Excellent. थैंक यू विनय। Welcome, welcome. Yes. Next one is Durgesh Panchal. हेलो सर, Hello. गुड मॉर्निंग सर। मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे सर ये जो बच्चों का हम जो यूथ के लिए पर्टिकुलर करवाते हैं, उसमें कौन सा हार्ट रेट जो है उनकी ट्रेनिंग के लिए हमको कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो ये हम जैसे आफ्टर 15 और 16 इयर्स के बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए तो हम जो ये फॉर्मूला है 180 वाला वो कंसिडर कर सकते हैं। बट ये जो अंडर 14 इयर्स के हैं उनके लिए कौन सा हार्ट रेट उनकी ट्रेनिंग के लिए हमको होना चाहिए? Maxwell, can you go? यस आई कैन आंसर, आई कैन आंसर। Okay. तो आपका ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा मतलब कौन सा हार्ट रेट में ट्रेनिंग कराना, ये ये जो उनका बेस जो एरोबिक बेस उनका बिल्टअप करने के लिए। आपको वीएनजी आपको एक फॉर्मूलर बताया था। आप उस दिन वो क्लास में थे कि नहीं थे? कि वो फॉर्मूलर के उस दिन आप नहीं सर, मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्लास मैंने अटेंड किया था। He knows बट that. हाँ, तो वो फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन आप यस, देखो, हार्ट रेट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक आदमी से दूसरा आदमी में हार्ट रेट का फर्क होता है। तो आप जनरली एक हार्ट रेट पकड़ के सबको ट्रेनिंग नहीं करा सकते। आप सबसे पहले जो है आपको उस इंडिविजुअल का मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है वो मालूम करना चाहिए।
जैसा Yes, जैसा वो सब होता है। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि जो हम यूथ के लिए करवाते हैं उनको भी वही जो 180 माइनस एज और जो मॉर्निंग का जो हार्ट रेट होता है। हाँ उतना ही होता, क्योंकि उसका एज कम है ना, एज कम है ओके, तो फॉर्म्यूलर तो एक ही है, फॉर्म्यूला इज द सेम फॉर एवरीवन। आप छोटे बच्चे से लेके मतलब जूनियर बच्चे से लेके सीनियर सीनियर इवन एलीट मैन और उसके बाद में भी जो मास्टर्स है, इट इज द सेम फॉर्मूला फॉर एवरीवन, तो वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर, कि ये जो हम बच्चों, मैं पर्टिकुलरली यूथ के जो हमारा कैटेगरी है ना, अंडर 14 इयर्स, उन्हीं के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनके लिए जो प्लेट्स और वो सब है वो कितनी एज से हमको शुरू करवाना चाहिए? चला आंसर पावला जी? Yes, yes, go. तो देखो, फर्स्ट सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप अंडर 14 या जूनियर बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सेफ्टी इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। आपको जो है, आप ये जब क्लीट्स डालना चाह रहे हैं, तो क्लीट्स उसको डाल के रोड पे भिजाने से पहले आप उसको कई बार मतलब अपना सेफ एरिया में, सेफ एरिया या ग्राउंड हो या जहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, आप उधर जो है इसको जो है बिना के, क्लास चल रही है। हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ यस यस। आपको जो है उसको पहले पिना के उसके पीछे आप रहना, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि बच्चे जो है एक बार उनकी क्लीट अंदर लग गया तो उसको निकालना जरा मतलब ट्रेनिंग चाहिए उसको, अपने आप जरा उसका एक एंगल से निकलता है वो, तो बच्चे जो है उसके अंदर इतना परफेक्ट नहीं होते, कुछ दिन उनको सीखना पड़ता कि क्लीट में डालना कैसा और निकालना कैसा। तो अगर आप पहले उसको उसका सेफ्टी एस्पेक्ट्स देख के उसको पहले, जब वो परफेक्ट हो जाएगा, जब उसका क्लीट जो है पेडल में डालना और निकालना उसका जब परफेक्शन जब आएगा, तब मेरे हिसाब से आप उसको डाल के रोड पे भेज सकते हैं या उसको कहीं ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं। तब तक आप ये रिस्क मत लो, क्योंकि एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है बच्चों में, स्पेशली 12 और 14 साल के बीच में। तो उसके लिए आप डेली ट्रेनिंग कराओ, क्लीटिंग एंड अनक्लीटिंग जो है उसको पहले ट्रेनिंग कराओ। जब आपको लगता है कि उसका परफेक्शन आ गया उसके अंदर, तब आप उसको रोड पे भिजा सकते हैं या ट्रेनिंग पे भिजा सकते हैं। मैं सर ये जो पूछ रहा हूँ ना, वो ऑलरेडी 10 इयर्स के जो बच्चे हैं जो अभी 13 इयर्स के हो गए हैं, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी सेकंड थर्ड रैंक में आते हैं। वो टाइम पर हमने कोई क्लीट्स नहीं पहनाया था, तो अभी वो लोग 13 इयर्स के हैं, तो उनके लिए ही मैं पूछ रहा हूँ। तो हाँ वो नहीं, लोग एज या एज फैक्टर नहीं है ना, उसका स्किल के फैक्टर है। वो 13, वो 8 साल का होके स्किलफुली क्लीटिंग एंड डीक्लीटिंग कर सकता है, वो 14 इयर्स का भी होके वो उसका स्किल इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो एज फैक्टर नहीं है यहाँ, इट इज द डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ क्लीटिंग एंड डीक्लीटिंग। थैंक यू। Maxi, I would like to add here regarding maximum heart rate. हाँ जी। जो एज वाला है, when you don't have any basic knowledge या कुछ ऐसा, तब ठीक है। अदरवाइज जो भी बेस्ट थिंग इज कि आप उसको मैक्सिमम एफर्ट कराइए, देन सी कि उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट कहाँ तक जाता है। बिकॉज जो ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है 220 माइनस एज वाला जो है, बेस्ट थिंग इज कि गो फॉर अ मैक्सिमम एफर्ट ऑफ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। तो जैसे वो जो 34 मिनट्स एंड 20 मिनट्स वाला या एफटीपी टेस्ट वाला जो है प्रोटोकॉल, आप उसको करेंगे तो यू विल गेट हिज मैक्सिमम हार्ट रेट। उसमें लास्ट में उसको बोलिए स्प्रिंट लगाएगा, तो उससे जो आपको आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे हमारे पास दिल्ली में हैं एक दो लड़के जिनकी मतलब 220 तक जाती है एंड ही इज अराउंड 20 इयर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैव उसका कुछ रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपके पास में है हार्ट रेट का, तो बेस्ट इज कि उसको बोलिए कि अपना ऑल आउट एफर्ट करे, so that then you see his maximum heart rate and then make his zones जो भी। उसको मैं बताया था हार्ट रेट का, लेकिन वो ये उसका क्वेश्चन ये था कि ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, बच्चों को ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं, कि दैट इज व्हाई। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा जहाँ जिनके पास में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, they should record and then go for it. If you are intending to become a professional athlete, then you must know your maximum heart rate. और कहीं आपके पास मशीन भी नहीं है तो आप जस्ट एक स्प्रिंट लगा के उसका मतलब हैंड वो खुद अपना रिस्ट या नेक पकड़ के आप विसल पे 15 सेकंड्स विसल स्टार्ट करिए और स्टॉप करिए और इंटू 4 करके आप उसका मैक्सिमम हार्ट रेट, इतना एक्यूरेट तो नहीं होगा लेकिन करीब करीब आसपास मिल जाएगा आपको उसका मैक्सिमम हार्ट रेट। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है तो देयर इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग योर मैक्सिमम हार्ट रेट। Exactly.
Next question. Okay, next one is Maria. Hello. Yes, you can speak now. Hello. Speak, speak. मारिया, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. Can't make out what you're saying. जी आपका आवाज नहीं आ रहा, आप थोड़ा नेटवर्क में जाके बात कीजिए तो आवाज आएगी. हेलो सर. हाँ जी बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ सर, मैं असम से बोल रही थी और मुझे ट्रैक साइकिलिंग में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? पावले से बताइए, आपके इलाके के. ट्रैक साइकिलिंग में प्रैक्टिस ट्रेनिंग करना है या करियर करना है तो आपको ट्रेनिंग शुरू करना है. ट्रैक वेदर इट इज अ ट्रैक साइकिलिंग हो या रोड साइकिलिंग हो, आपको तो ट्रेनिंग तो करना है. और एंड्योरेंस ट्रेनिंग तो आपको ट्रैक में भी काम में आने वाली है, रोड ट्रेनिंग भी, रोड साइकिलिंग में या रोड इवेंट्स में और ट्रैक इवेंट्स में, दोनों में आपको एंड्योरेंस तो चाहिए. एंड्योरेंस राइड जब भी आप साइकिलिंग चालू करोगे तो एंड्योरेंस राइड से चालू करना है आपको. नहीं, उसका क्वेश्चन था कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, आपका ये क्वेश्चन था मारिया. हाँ सर. तो आपके स्टेट के अंदर एक स्टेट सिलेक्शन होता है बिफोर द नेशनल्स, जो नेशनल, तो वो स्टेट मीट के अंदर या स्टेट सिलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करके अगर आप बेस्ट 1 और 2 में, जैसा वो बेस्ट 1 2 को लेते हैं, कभी 1 2 3 को लेते हैं, उसके हिसाब से अगर आप बेस्ट में आएंगे तो आप सेलेक्ट होके टीम के अंदर, आपके आसाम के टीम के अंदर आप आ जाएगा. दैट इज द प्रोसीजर. लेकिन ट्रेनिंग के लिए जो है आपको बिना ट्रेनिंग के आप एकदम जाके ट्रैक पे चलाना बहुत मुश्किल है. जैसा पौले जी ने आपको बताया था, यू डेफिनेटली नीड ट्रेनिंग बिफोर यू पार्टिसिपेट ऑन द वेलोड्रोम. नहीं तो आपके लिए सेफ्टी एस्पेक्ट्स हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर आप वेलोड्रोम पे जाएंगे तो इट इज नॉट नहीं चला पाओगे. हाँ सर, और ट्रेनिंग में कहाँ में करना होगा मुझे? आप कहाँ पे हो मारिया? पौले जी बताएंगे. असम में. मैं असम गुवाहाटी से हूँ. असम गुवाहाटी में वेलोड्रोम है ना सर? हाँ बोलिए सर, प्लीज आप बोलिए. सॉरी विनय, देखिए मारिया जी, अपना वेलोड्रोम में जो साइकिलिंग वेलोड्रोम गुवाहाटी का है वो सोनापुर के नजदीक है. हाँ सर. आपको वेलोड्रोम में ट्रेनिंग करनी है तो सोनापुर में आना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए. हाँ सर. मगर आपको ट्रेनिंग तो रोड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. वंस इन हफ्ते में 2-3 सेशंस हम लोग ट्रैक पे कर सकते हैं. नीड नॉट एवरीडे आपको ट्रैक पे आने की जरूरत नहीं है. हाँ सर. अरे आपका एज कितना है? सर 14. तो आप पौले जी से कांटेक्ट करिए. वहाँ पौले जी वहाँ आपके सिटी का है, आप उसको कांटेक्ट करिए और आपको वहाँ गाइड करेगा कि क्या करना, ट्रेनिंग कैसा करना. आप पौले जी वहाँ का चीफ हेड कोच है, तो आप उसके साथ कांटेक्ट करिए तो ही विल गाइड यू कि कैसा करना, क्या करना. हाँ सर, ठीक है सर. थैंक यू. वेलकम. Okay, next one is Mr. Steve from Bihar. शिरीष बिहार. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द बेसिक ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग कैडेंस, लाइक सर 25 की स्पीड पे चला रहे हैं, फिर उस बंदे का अचानक डाउन हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो 25 में बहुत लोग का हालत खराब हो जाता है. नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है, मगर फिर भी जो मैं सोच रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो स्पीड वेरिएशन हो रहा है. हाँ. ओके, आपको जो मैंने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बेसिक एंड्योरेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है. आपका हार्ट रेट जोन आपको मालूम होना चाहिए. ये कैडेंस के ऊपर नहीं है, या आप कौन सा गियर रेशियो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं है. आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका हार्ट रेट वो जोन में रहना चाहिए. जैसे हमने बताया 65 to 75% ऑफ योर हार्ट रेट ट्रेनिंग होना चाहिए ये जोन 2 में. तो अगर जिसका 200 मैक्सिमम हार्ट रेट है तो 130 to 150 के बीच में आना चाहिए.
you have to ensure by using a proper gear or proper cadence. Okay, sir. Speed doesn't matter, speed उसके ऊपर मैटर नहीं करता है, आपका कैडेंस और गियर रेशियो से इंश्योर करना है कि आपका ये कैडेंस हार्ट रेट आपका ये जोन में रहेगा। अकॉर्डिंगली कोई उतार है या कोई चढ़ाव है, आप गियर रेशियो चेंज कर सकते हो, एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू कंटिन्यूसली 2 घंटा 3 घंटा जो आपने सोचा है वो जोन में राइड करेंगे। Okay, sir. क्लियर? Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Now no more question. Michael sir, Haji, now you can close. no more questions? No. Yes, one. Usha Madam Tina. Usha Tina, yes. Yes, madam. Please unmute her. Hello. Mr. Pavle, please. Yes, ma'am. Good morning. Good afternoon. Very good afternoon, dear. Yeah. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you. Can you define what is FTHR? Yeah, it is functional threshold heart rate. Functional threshold heart rate. FTHR. Functional threshold threshold. heart rate. Okay. Threshold Thank you. heart Thank rate. Like I'll you, call you through telephone. Thank you. Good day. FTP, it is for the power. And Yeah. FTHR Yeah. Yes. Thank you. Good day. I will call you through phone. Okay. Thank you. Thank you. Good day. Bye. Thank you, ma'am. There is one more question. Hello. I think so. Please, you can unmute yourself. Lexis, बोलो. Okay. Okay, sir. No more question. You can close now. Close करो. Yes. Okay, so I would like to thank Paule ji for an excellent session. He's, as I told you, his knowledge on the subject is very good. और उसका जो simple way में जो explain किया, I think everyone understood it and they got the message. इसलिए ज़्यादा question भी नहीं है, क्योंकि वो उनको मेरे ख्याल से उनको सबको समझ में आया बात. तो I thank Subhash Paule ji for this excellent session, and I thank all of you for attending this class. I also urge you and encourage you to attend the classes continuously. और आपका जितने भी questions है, आप Saturday इसके लिए special time एक program, special program है, जिसमें खाली question and answer sessions होगा. Time तो same होगा 11 to 12. तो उसके अंदर आप सब लोग participate करें, and please keep joining and learn more and more. We thank Sports Authority of India and Cycling Federation of India for this excellent platform. विनय जी, आप कल का जो प्रोग्राम जरा डिस्प्ले करिए ना, वीक्स प्रोग्राम एक बार आप लोग देख लीजिए कि कल भी क्या है. व्हाट इज द टीचिंग्स टिल सैटरडे. हाँ देखिए, टुमारो इज फटीग एंड रिकवरी. दिस इज बाय अजीत सिंह. आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड अजीत इज अ वेरी गुड पर्सन टू टेक द सब्जेक्ट. तो कल भी आप जरूर अटेंड करना और जरूर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा. दिस फटीग एंड रिकवरी इज नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्समैन बट फॉर एवरीवन. आप घर पे भी जब काम करेंगे, दिस विल बी एप्लीकेबल कि रिकवर कैसा होना. when you are tired, there is a lot of information and a lot of knowledge in that, in the कल का क्लास में. तो आप लोग जरूर कल का क्लास अटेंड करना. और सैटरडे जो है, वेलकम टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और उसमें आप देख रहे कि आर.के. शर्मा जी है और अजीत सिंह जी है, and I will also be there to answer all your questions and doubts. Bye bye and thank you. Thank you all. Thank you, dear all. Hope you understood my presentation. Okay, sir. Thank you.